Dura matter, arachnoid and pia. Also, dura has to be toughest. Do you agree? True or false? Yes. Dura ड्यूरेबल होना चाहिए, टफ होना चाहिए, एकदम टफ और आउटर मेम्ब्रेन होता है. दूसरा हो गया. दूसरा आर्कनॉइड. आर्कनॉइड इज हैविंग वेब लाइक स्ट्रक्चर. वेब का मतलब या कुशन वेब लाइक स्ट्रक्चर का मतलब स्पाइडर वेब देखा है? स्पाइडर वेब सोचो कैसा होता है, है ना? तो अगर सोचो स्पाइडर वेब को ऐसे कंडेंस करके थोड़ा सा ऐसे रख दिया डेंस मीडियम में, तो वो कैसा हो जाएगा? स्ट्रक्चर उसका देखा रहेगा ना. सो दैट इज हाउ द आर्कनॉइड लुक्स लाइक. And the last one is pia matter, that is vascular. Vascular का मतलब anybody? Biology student should know this word vascular. Vessels, Which vessels? Blood vessel. It has a rich supply of blood vessels. Whenever I say vascular in terms of animals or humans, it is this. When I talk about vascular in plants, it is xylem and phloem. Okay? These three are called as meninges. Dura matter, arachnoid matter, pia matter are called as meninges. And inflammation of meninges. Do we know what is inflammation? Yes. What is inflammation? Price. Swelling, redness, pain, burning sensation or heat sensation is called as inflammation. तुम सोचो ये meninges का inflammation अगर हो गया तो उस चीज को बोलते हैं meningitis. क्या बोलेंगे? Meningitis. It can occur due to infection. Some viral or bacterial infection की वजह से वो हो सकता है. ब्रेन के बाहर है ना बेटा meninges. ये तुम्हारा ब्रेन है, इस ब्रेन के ऊपर है ना मेनिंजेस. तो मेनिंजेस का अगर स्वेलिंग हो गया तो मेनिंजाइटिस बोलेंगे. So अगर कुछ इंफेक्शन रहेगा तो it can travel to the brain. Yes, of course. And what is the side effect? मेनिंजाइटिस में बहुत कुछ हो सकता है. मेनिंजाइटिस में a person can lose eyesight also. A person can lose क्योंकि वो अफेक्ट करेगा ना आगे, वो ब्रेन तक फैलेगा. तो आईसाइट किसी का लूज होता है. ठीक होता है. मेनिंजाइटिस अगर बहुत पहले पता चल गया ना तो ऑफ कोर्स. ये कोविड के टाइम में there were people due to some medications and everything, they also started suffering from meningitis. My relative had this, but it got cured. क्योंकि एकदम से पता चल गया ना तुरंत और ट्रीटमेंट शुरू हो गया. अदरवाइज meningitis अगर ज्यादा प्रोसीड होता है तो आईसाइट लूज हो गया, फिर हियरिंग कभी-कभी लूज आउट हो जाता है. अगर ज्यादा हो गया तो इट कैन बी फेटल. सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स यही है, कंफ्यूजन होने लगता है, डिजीनेस होने लगता है, फिर सिवियर हेडेक, ये सब. हाँ, अगर सर्जरी के टाइम पे गलती से ब्रेन में कट आ गया तो क्या होगा? तो वो क्योर होगा वो ऐसे कट. ओके, नेक्स्ट अप वी हैव इज मेनिंजाइटिस हो गया, सीएसएफ हो गया. ओके, नाउ वी गो ऑन टू द थ्री पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. टाइम देखा मैम. मैंने कुछ बोला ही नहीं. कीप इट. देखो सीएसएफ. अरे ठीक है. नाम लग रहा था. CSF हो गया. CSF के बाद three parts of the brain. The three parts of the brain that we have is cerebrum, cerebellum and medulla oblongata. Cerebrum is the largest portion of your brain. तुम में से अगर किसी ने भी देखा होगा the model of the brain, that what you will see, cerebrum यहाँ होगा. Okay, starts from the frontal portion, it goes till here. Then lower part you will be having cerebellum. और cerebellum और cerebrum के बीच में अगर तुम देखोगे अंदर की साइड there will be a medulla oblongata. So majority of your brain is composed of the cerebrum, largest portion. However, this largest portion is divided into two hemispheres. अभी अब hair partition वैसे ही ये भी होता है, एक deep furrow होता है. इसकी वजह से the cerebrum is divided into two portions. One is called as the right cerebral hemisphere, the other one is called as left cerebral hemisphere. Next up, if you understand. So next up, there will be ridges and furrows that are present. So if you have a look onto the brain, you'll be able to see lines. ऐसे lines, wrinkles जैसे हम बोलते हैं. But वो wrinkles इसीलिए क्योंकि अगर तुम देखोगे तो there are ridges and furrows that are present. Now what is ridges or furrows? या इसको grooves भी बोलते हैं. Ridges and groove. Ridge is this and this portion that is onto a little inner side that is called as groove or furrow. Okay? जिसको gyri और sulci भी बोलते हैं. The technical name given to this is gyri या gyri बोलते हैं इसको, और this is called as the sulci. Numerous of this. That's the reason we have wrinkled appearance on the brain. It's not flat. Flat दिखता है? Flat नहीं दिखता ना, ऐसे lines दिखती है.
भेजा खाता भी जो है उसको मालूम रहेगा, कभी तो देखा होगा है ना? भेजा खाता हाँ, वो क्या होता है? गोट का ब्रेन। वो मेरे सामने ही करके तो अगर वो देखा भी होगा तो तुमने ऐसे भी अगर तुमने उसको देखा होगा तो you'll understand SULCI subkite and gyri. Now listen to this. ये क्यों है? क्यों फ्लैट नहीं है ब्रेन? ब्रेन तो फ्लैट भी हो सकता था, बट न्यूरॉन्स ज्यादा समा सकते हैं इसमें. Now look at this. If the same distance I have very flat portion, तुम सोचो कि इसमें कितने न्यूरॉन्स रह पाएंगे? But just because there is a convoluted structure, there can be a lot of neurons can be fitting into this. याद है पीला ही पढ़ा था? The surface area increases so that a lot of absorption can happen. यहाँ पे if the surface area increases, a lot number of neurons can be accommodated in that space. इसीलिए ऐसा बोला जाता है. जिसके ब्रेन में ज्यादा रिंकल्स होता है या ज्यादा लाइंस होता है, वो ज्यादा बुद्धिमान होता है. वो इसीलिए क्योंकि उसके ब्रेन में ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं. सिंपल. Are you sure that part? अभी तुम आपने देखो तो फ्लैट दिखेगा. तो ऐसा है, रियल है, बट उसको यूज करना आना चाहिए ना. आइंस्टाइन की कॉन्वोल्यूटेड ज्यादा थे. Yes. पर उसको यूज भी करना आना चाहिए, है ना? तुमको पैसा दे दिया, तुमको पता ही नहीं है कि पैसा यूज कैसे करें, तो क्या ही काम करें. तो ब्रेन जितना तुम्हारा एक्सरसाइज करता रहेगा, ब्रेन जितना तुम्हारा काम करता रहेगा, उतना उसका पावर बढ़ता भी रहेगा. न्यूरॉन्स इतने तो है, पर न्यूरॉन्स को काम में भी तो लाना चाहिए. इसके अलावा इफ यू अंडरस्टैंड द ब्रेन इज लाइक दिस. इफ आई जस्ट गिव यू अ रफ फिगर, द ब्रेन विल बी लाइक दिस. सोचो ऐसा है. साइड व्यू अगर देखेंगे या अगर अपर व्यू से भी देखा तो ब्रेन ऐसा है. तुम सोचो दिस आउटर पोर्शन of the brain is made up of gray matter. GRAY. A दिया है ना तुमको? A है. Gray matter. And the inside of it is made up of white matter. Spinal cord में भी है. ठीक है? अभी अंडरस्टैंडिंग दिस. आउटर पोर्शन अगर देखोगे तो ग्रे मैटर से बना है, अंदर का पोर्शन देखोगे तो व्हाइट मैटर. ये ग्रे और व्हाइट है क्या? कैन यू सी दिस साइटोन? साइटोन विल मेक अप द ग्रे मैटर, एक्सॉन विल मेक अप द व्हाइट मैटर. तो अब तुम सोचो कि ये जो अरेंजमेंट है ना, ये कैसा बना हुआ है यहाँ पे. मैं सिर्फ न्यूरॉन्स की बात कर रही हूँ, नर्व्स पे नहीं आएंगे. इसमें न्यूरॉन नहीं, इसमें नर्व्स है. अभी सुनो द एक्सॉन. अभी ये वाला फिगर मैं अच्छे से यहाँ ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, बट आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, साइटोन ये है, एक्सॉन इधर है. साइटोन ये है सारे, और एक्सॉन्स इस तरह से. आर यू एबल टू सी द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूरॉन इन द ब्रेन? बहुत सारे हैं, Millions. अरे कुछ ना. आई टोल्ड यू ना फ्यू. हाँ जी. So white matter is nerves and grey matter is ganglion. नर्व्स वापस बोला. नर्व फाइबर या एक्सॉन. तो आपने इतने सारे साथ में तो बना है. हाँ, तो वो बंडल होके ट्यूबुलर शिफ्ट में जा रहा है. शायद नहीं, मैंने कहाँ ड्रॉ किया उसको ऐसा. समझ आया? आई जस्ट वांट टू टेल यू. याद है मैं जब पढ़ा था नेफ्रॉन पढ़ाया था, याद है नेफ्रॉन, DCT, PCT, लूप ऑफ एनली. तो उसमें भी मैंने बोला था कि ये कॉर्टेक्स में आता है और ये रीजन मेड्यूला में आता है. समझ आया? So this region, the cortex region of the brain is made up of the gray matter, and gray means cyton, and the inside or the medulla of the brain is made up of white matter, that is made up of axon. ये समझ आया? Easy? Okay, gray और white हो गया. Other than that, we have कॉर्पस कैलोसम. कॉर्पस कैलोसम क्या होता है? ये सोचो, ये राइट हेमिस्फीयर है ब्रेन का, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर. ओके, ये वाला. कैन यू सी इट इज जॉइनिंग हियर? ये दिख रहा है ये पार्ट जहाँ पे वो जॉइन कर रहा है ना? दिस पार्ट दैट यू सी इज कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोसम. Between two hemisphere, the two hemisphere join or connect with a very much fibrous structure जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम. फिगर में देखो दिख रहा है कॉर्पस कैलोसम. Connection, it's just a connection between the two hemispheres. Understand? दो hemispheres हैं, right और left. आउटर ब्रेन और मिड ब्रेन के बीच में. हाँ,
तो राइट और लेफ्ट ब्रेन जो हेमिस्फीयर्स है दो, उसके बीच में भी तो ट्रांसमिशन होना चाहिए ना. वो ट्रांसमिशन कौन करवाएगा? कॉर्पस कैलोसोम. अगेन which is that part? Corpus callosum. Easy? Okay. Do you know about right brain, left brain? Yes. Okay. You always say that a person can be right brain, either right brain or left brain. Understand? ऐसा नहीं है कि अगर कोई right brain है मतलब उसका left वाला काम नहीं कर रहा है. Both are working, but one is dominant over the other. So, if a person is right brain, the right brain का मतलब होता है the person is very intuitive, very creative, has a very much artistic approach. And if you talk about a left brain person, left brain is very much rational thinker, practical, scientific and logic and mathematics. ये साइड बहुत strong होता है. हम किस कैटेगरी में Okay? आते हैं? तो जो लोग तो राइट से notice. लिखते हैं वो लेफ्ट नहीं ऐसा कुछ हाँ. नहीं है. हाँ बोला माम क्या But क्या- इसके अलावा भी जो तो हो भी सकता है. राइट साइड में बॉडी का मूवमेंट होता है वो लेफ्ट ब्रेन से अरे रिलेटेड. that is different. Wait, I'm coming to it. तुम्हारा जो राइट ब्रेन है ना वो लेफ्ट को कंट्रोल करता है और लेफ्ट है वो राइट को कंट्रोल करता है. अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम जस्ट टेलिंग यू अनदर एस्पेक्ट दैट इज राइट ब्रेन्ड पर्सन एंड लेफ्ट ब्रेन पर्सन. फॉर एग्जांपल आई माइट बी आल्सो डूइंग अ लिटिल ऑफ मैथ. आई माइट बी आल्सो डूइंग साइंस. आई एम अ साइंस टीचर. तो साइंटिफिक फैक्ट्स में मैं भी लिव करूंगी, है ना. प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे भी है. बट if you go through a test you know that which kind of a person you are. Brain person. I am a right brain person. Right. The right brain person का मतलब my inclination is more towards the creative or artistic approach. इसका मतलब कौन सा टेस्ट? कौन सा we'll do it now. Wait. आई नाम दो. Okay, you can do it now. I'll share the link right away. तो इससे तुमको पता चलता है कि what are you inclined. मेरा ऐसा नहीं है कि मैं मैथ में मुझे 2+2 नहीं आ रहा है. I'm struggling. ऐसा नहीं हो रहा है. नहीं. But my interest will be towards that. तो right brain is dominant over left. अगर कोई left brain है तुम में से तो तुम्हारा left brain is more powerful. So you know when you take some aptitude test, when you take personality test, तो बहुत सारे questions होते हैं. Some are related to art, some are related to math, some are related to science. तो इससे तुमको पता चलता है तुम right हो या left. करोगे तुम? Can you be both? Yes, you can be. It comes in the percentage also. Now I'll see which side is available. Close ratio.